जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। So we are going to start with lecture number 15 of therapeutic exercise and techniques 2. Uh, in the last lecture we have discussed about the uh, wrist joint, जिसमें हम लोगों ने बात की थी about the lacerations, ठीक है, of the flexor tendons and lacerations of the extensor tendons, ठीक है। ऐसे ही है, लास्ट टाइम हम लोगों ने रिस्ट के जो लॉन्ग टेंडन्स हैं, फ्लेक्सर्स एज वेल एज एक्सटेंसर्स, उनके लेसरेशन और रप्चर्स के बारे में बात की थी। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सर्जिकल प्रोसीजर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो in this lecture, lecture number 15, we are going to start with the hip joint with the lower extremity, ठीक है। In this lecture we will discuss about the anatomy of the hip joint, ठीक है। So I am going to start with the I am going to start a screen share with you of the PowerPoint presentation on the hip joint. So now the hip joint is present. Hip joint is usually the same as your glenohumeral joint or as the shoulder joint. They have almost the same characteristics as the hip joint has almost the same characteristics as that of the shoulder joint. ठीक है. Now the hip joint is the joint that connects your lower extremity with the trunk. ठीक है. Uh, Same like the shoulder joint which connects the upper extremity with the trunk. ठीक है. सही है। सो वो कहते हैं कि हिप जॉइंट जो है इट इज a joint that involves the pelvis, ठीक है, and the femur, ठीक है। ऐसे ही है, हिप जॉइंट आपकी दो बोन्स से मिलकर बनती है। द वन इज pelvis, ठीक है, एंड द अदर वन इज द proximal portion of the femur, ठीक है। So here you are going to see the hip joint, ठीक है, the pelvis and the femur, ठीक है। आप सबको नजर आ रहा होगा कि the pelvis, ठीक है, as you all know that the pelvis is formed of three bones, ठीक है। The one is ilium, the second one is ischium, and the third one is pubis, ठीक है। Now if we talk about we are talking about the pelvis, ठीक है। It is the right there are two sides, the right side and the left side, ठीक है, and the pelvis is on the right as well as on the left. So right-sided pelvis is also formed by three bones as well as the left-sided pelvis is formed by the three bones. The name is ilium, ischium and pubis. ठीक है। आप सबको पता है कि ये pelvic bone है आपकी, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी femur है, ठीक है, femur का जो proximal portion है, the head of the femur, it articulates with the acetabulum, ठीक है, that is a articular surface present on the pelvis, ठीक है। One articular surface is the acetabulum which is present on the pelvis. The second articular surface is the head of the femur that is present on the femur, ठीक है, and the distal bone that is going to be moved, ठीक है। Now वो कहता है कि pelvis and your femur it is designed to uh, bear the body weight, ठीक है, designed to bear the weight of your upper trunk, designed to bear the weight of your head, your trunk and your upper extremities, ठीक है।
And this hip joint, this is actually designed to transmit the forces, whether from the ground towards the trunk and from the trunk towards the ground. Okay? When you are walking, okay, the forces are transmitted in both the directions. Okay? The weight, it is moving from the upper side towards the lower side, or from the trunk through the hip joint to the ground, or the ground reactional forces. Okay? They are moving from the ground to through the hip joint towards the trunk. Okay? So this joint is important in transmitting your forces. This joint is important in bearing your body weight. Okay? So, as you all know that the pelvis is formed by the ilium, ischium, and pubis. It is it articulates the pelvis. They both articulates anteriorly at the pubic symphysis. Okay? It is an articulation. If I let's see here, the ilium, ischium, and pubis, the right-sided pelvis and the left-sided pelvis. Okay, they are united and articulated anteriorly at the pubic symphysis. Okay, this is the pubic symphysis. Okay, it is located in the anterior side. Okay, of your body, and it is as the right-sided pelvis and the left-sided pelvis, they are articulated on the posterior side with the spine through the sacroiliac joint. Okay, this is the sacrum. Okay, the portion of the spine. Okay, it articulates with the ilium. Okay, forming the sacroiliac joint, and it is located on the posterior side. ठीक है, same to same, this is the left sided sacroiliac joint and this is the right sided sacroiliac joint. ठीक हो गया? सही है, तो आपकी राइट साइडेड pelvis और लेफ्ट साइडेड pelvis आपस में यूनाइट कर रही हैं on the posterior side with the sacroiliac joint and on the anterior side with the pubic symphysis. ठीक हो गया? उसके बाद वो कहता है कि these articulations, ठीक है, they are not just here to transmit the forces, or they are not just there to remain static throughout the movement of the lower extremity, but there are some movement that occurs at these joints, at the sacroiliac joint and at the pubic symphysis. ठीक है, this movement, these are the slight movements, ठीक है, that are going to occur at these sacroiliac joints and at the pubic symphysis. ठीक है, and these movements, they play a significant role in transmitting the weight of your upper trunk. ठीक है, सही है. Now the pelvis, it is designed to bear the weight. ठीक है, whether if the weight is coming from the above, ठीक है, of the weight of the trunk, the head and weight of the upper extremity, ठीक है, or whether it is coming from the lower side, ठीक है, from the ground reactional forces, ठीक है, this pelvis is here to bear the forces. Actually, it absorbs the forces here. Maximum forces are absorbed, ठीक है, so that the spine, ठीक है, bears the least weight. ठीक है, if the forces are transmitted from the ground, and if the forces are transmitted from the upper side from the trunk, the pelvis is here to absorb these forces, so that the hip joint and the knee joint and the ankle joint bears the minimum weight. ठीक हो गया? उसके बाद वो कहता है कि
Now, if we talk about the femur, okay, the femur here is also designed to bear the weight and to transmit the ground directional forces. Okay, both the bones involved in the hip joint, they have the same function. They have the same design. ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो वेट होता है, ठीक है, फीमर किस तरीके से बेयर करती है, इट बेयर्स द वेट थ्रू द थ्रू इट्स लॉन्ग shaft, and from the shaft it is transferred into the neck, and then it is transferred into the femoral head, ठीक है, which articulates with the acetabulum to form the hip joint, ठीक है। नाउ वो कहता है कि इन द फ्रंटल प्लेन विच इज, एक तो सेजिटल प्लेन होता है और एक फ्रंटल प्लेन होता है। फ्रंटल प्लेन इज मीडियल टू लेटरल and the sagittal plane is anterior to posterior. So in the frontal plane there is an angle of inclination, ठीक है। angle of inclination क्या होता है? The angle that is going to be formed between the axis of the femoral neck and the shaft of the femur, ठीक है। femoral neck और shaft of femur के दरमियान जो एंगल बन रहा है, ठीक है, that is the angle of inclination, ठीक है। How much inclined is your femoral head from the shaft of the femur? आप इसको ये भी कह सकते हो या आप इसको ये भी कह सकते हो कि how much the long shaft of the femur has been inclined from the head of the femur, ठीक है। एक ही चीज है, या आप shaft को रेफरेंस बना लो या आप femoral head को रेफरेंस बना लो, ठीक है। they are not they do not lie in the same plane, ठीक है। if you see from the side, ठीक है, there is an angle of inclination between the femoral head and the shaft of the femur, femoral neck and the shaft of the femur, ठीक है। this is known as angle of inclination, or this angle of inclination is 125 degrees, ठीक है। Now the second angle at the femur is the angle of torsion. The angle of torsion is formed by the transverse axis of the femoral condyles and the axis of the neck of the femur, ठीक है। Now the femoral condyles, ठीक है, it is the distal portion of the femur, ठीक है। It lies and they lie, ठीक है, uh, and there is a angle between the femoral condyles, ठीक है, and the neck of the femur, ठीक है। The first angle of inclination is formed between the shaft and the neck of the femur, ठीक है, and the second angle of torsion, ठीक है, it is formed between the femoral condyles that are present at the distal portion of the femur and between the neck of the फीमर, ठीक है। सो वो कहता है कि ये जो एंगल ऑफ टोर्शन होता है, इट रेंजेस फ्रॉम 8 डिग्रीज टू 25 डिग्रीज, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज 12 डिग्री ऑफ टॉर्शन इज प्रेजेंट एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल एवरेज, जो है वो डेट इज गोइंग टू बी द 12 डिग्री, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि there is slight bowing of the femur in the sagittal plane. If you see the femur from front side or from back side, ठीक है, there is slight bowing, ठीक है। Bowing means there is a slight curve of the shaft of the femur, ठीक है, from anterior to posterior direction, ठीक है। Now all these angles, ठीक है, why these angles are important? The angle of inclination, the angle of torsion, and this bowing of the shaft of the femur, it is important to bear the maximum weight and to transmit the forces efficiently, ठीक है। If the angle of inclination has been reduced, ठीक है, whether it is coxa valga or whether it is coxa vera, then the femur becomes less efficient in transmit the forces, ठीक है, जिसकी वजह से जो हिप जॉइंट की मूवमेंट होगी वो भी
कंप्रोमाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, सही है। अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में कमी आ जाए या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज़्यादा हो जाए, इसी तरीके से अगर एंगल ऑफ टॉर्शन कम हो जाए या एंगल ऑफ टॉर्शन ज़्यादा हो जाए, इसी तरीके से बोइंगो फीमर अगर कम हो जाए या बोइंगो फीमर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आपकी जो फीमर है इट विल बिकम लेस एफिशिएंट इन ट्रांसमिट द फोर्सेस। ठीक है, और जब ये लेस एफिशिएंट बनेगी तो ऑब्वियसली जो हिप जॉइंट होगा वो किस तरीके से इसको कंपनसेट करेगा, बाय लिमिटिंग द movement, by decreasing the movements occur at the hip joint. ठीक है, सही है। Now, if we talk about the hip joint itself, what are the characteristics? ठीक है, first of all, the hip joint is a triaxial joint. ठीक है, triaxial means the hip joint has the ability to move in all the three planes. ठीक है, whether it is a sagittal plane, whether it is a frontal plane, or whether it is a transverse plane. If it is in the sagittal plane, the hip joint moves in flexion and extension. If it is the transverse plane, the hip joint moves in external rotation and internal rotation. And if it is the frontal plane, the hip joint is going to move in abduction and adduction. ठीक है, and just like shoulder joint, it is also a ball and socket joint. ठीक है, shoulder joint और hip joint में difference क्या है? ठीक है, shoulder joint जो है it is designed for mobility. ठीक है, but the hip joint it is designed for weight bearing. It is designed for stability. ठीक है, as you have to stand, you have to walk on these joints. ठीक है, that's why the hip joint is designed to be the hip joint is designed to bear the weight. ठीक है, and to transmit the forces. ठीक है, that's why the hip joint is relatively more stable as compared to the glenohumeral joint. ठीक है, now if we talk about the hip joint is supported by strong articular capsule. ठीक है, unlike that of the glenohumeral joint. ठीक है, which has been supported by the uh, loose capsule or lax capsule. ठीक है, hip joint जो है that is supported by a strong articular capsule. ठीक है, that helps to keep the hip joint in a stable position, or that helps to provide stability to the hip joint. ठीक है, now the right-sided femur, now the hip joint, the right-sided hip joint and the left-sided hip joint, they are linked to each other by the presence of a pelvis. ठीक है, the pelvis is an intermediate between the right-sided and the left-sided hip joint. ठीक है, and they are connected to the vertebral column by the sacroiliac joint and by the lumbosacral joints. ठीक है, so if we talk about the articular surfaces of the hip joint, the one articular surface is the femoral head, the second articular surface is the acetabulum. ठीक है, the acetabulum is formed by the ilium, ischium and pubis. All the three innominate bones forms the acetabulum. ठीक है, slide portions. ठीक है, इलियम इशियम का सबसे ज्यादा हिस्सा होता है जबकि प्यूबिस का सबसे कम हिस्सा होता है. They are going to form the acetabulum. ठीक है, now if we talk about the acetabulum, its orientation. ठीक है, the acetabulum it faces in the lateral direction, it faces in the anterior direction and it faces inferiorly. ठीक है, सेम इसके ऑपोजिट आपकी क्या हो जाएगी, ओरिएंटेशन हो जाएगी आपके femoral head की. ठीक है, if the acetabulum is faces in the lateral direction, the femoral head is going to face in the medial direction. If the articular surface of the acetabulum is facing in the lateral anterior direction,
the femoral head is going to face in the posterior direction. And if the articular surface is going to be oriented or facing uh, inferiorly, the femoral head is going to face in the superior direction. ठीक है, this orientation is important just to know the anatomy. ठीक है कि आर्टिकुलर सरफेस एसिटेबुलम किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है और आपका फेमोरल हेड किस डायरेक्शन में फेस करेगा. ठीक है. सर एक दफ़ा फिर से Now रिपीट कर दें. the acetabulum, ठीक है, the articular surface of the acetabulum, it faces in the anterior direction. The femoral head is facing in the posterior direction. ठीक है, the acetabulum, the articular surface of the acetabulum, it is facing in the lateral direction. The femoral head is facing in the medial direction. ठीक है, the acetabulum is facing inferiorly. The femoral head is going to face in the superior direction. ठीक है, it is a combination of all these directions. ठीक है, एसिटेबुलम लेटरली भी आपका फेस कर रहा है, एंटीरियरली भी फेस कर रहा है और इंफीरियरली भी फेस कर रहा है. आप लोग वन बाय वन इनको फेस करके देखें कि लेटरली फेस कर रहा है, फिर आप उसमें थोड़ी सी इंटीरियर डायरेक्शन डाल दें और फिर थोड़ी सी आप इंफीरियर डायरेक्शन डाल दें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हिप आर्टिकुलर सरफेस जो है एसिटेबुलम की वो किस डायरेक्शन में मौजूद होती है. ठीक है, या उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है. ठीक है. नाउ द हिप acetabulum. If we talk about the acetabulum has been deepened. ठीक है, this articular surface has been deepened just like the glenoid labrum. ठीक है, the one at the shoulder joint. ठीक है, the acetabulum has been deepened by a fibrocartilaginous structure which is known as acetabular labrum. This acetabular labrum, ठीक है, it is a fibrocartilaginous structure and to actually it deepens this fossa, this articular surface, so that the femoral head tightly becomes bound to the articular surface, ठीक है, of the acetabulum. Now, if we talk about the articular cartilage of the hip joint, the articular cartilage of the hip joint, it is horseshoe shaped. ठीक है, horseshoe shaped means, ठीक है, it is more thick on the lateral sides. ठीक है, and it is thin in the central portions. ठीक है. Why it is thick on the lateral side? Because the lateral sides they are involved in much weight bearing. ठीक है. So here the hip joint, ठीक है, or the acetabulum is going to provide sufficient cushioning by increasing the thickness of the articular cartilage. ठीक है. So that's why the articular cartilage it is more thickened on the lateral side as compared to the medial side or as compared to the central portion of the acetabulum. Now, if we talk about the femoral head is a convex bony partner, whereas the acetabulum is a concave bony partner, similar to the similar to that of the um, uh, glenohumeral joint. ठीक हो गया. Now, if we talk about the ligaments of the hip joint, there are three important ligaments: the iliofemoral ligament, the ischiofemoral ligament, and the pubofemoral ligament. ठीक है, the iliofemoral and the pubofemoral ligament they are present on the anterior side, and the ischiofemoral ligament it is present on the posterior side. ठीक है, all these ligaments they are going to limit excessive hip joint extension. ठीक है, इन तीनों ligaments का एक जो important काम है, ठीक है, वो क्या है कि इन्होंने extension को limit करना है. ठीक है. But if we talk about them individually, ठीक है, they have other functions as well. ठीक है, the iliofemoral ligament is going to provide support to the hip joint.
during external rotation, or it is going to limit the external rotation. ठीक है? And the pubofemoral ligament, it is going to limit the abduction. ठीक है? And the ischiofemoral ligament, it is going to limit the internal rotation and adduction. ठीक है? But when the hip is in flexed position. ठीक है? Iliofemoral is going to limit the external rotation. ठीक है? The ischiofemoral ligament, it is going to limit the internal rotation and the adduction. But when it is going to limit the internal rotation and adduction when the hip is in flexed position. ठीक है? And the pubofemoral ligament, it is going to limit the abduction. ठीक है? Of the hip joint. ठीक है? Now, among all these three ligaments, ठीक है, the iliofemoral ligament is going to be the strongest one, and it is also known as Y ligament of Bigelow. ठीक हो गया? So here you are going to see the iliofemoral ligament, the ischiofemoral ligament, and the pubofemoral ligament. ठीक है? Now, एक minute. This is the anterior side, ठीक है? The iliofemoral ligament. These are the two bands and the Y. This Y-shaped ligament here, it is present anteriorly, and this one is the pubofemoral ligament. ठीक है? सही है? अगर posterior डायरेक्शन में देखें तो तब भी आपका इलियोफेमोरल लिगामेंट आपको अपर सरफेस के ऊपर नजर आएगा, लेकिन मैक्सिमम जो पोर्शन है that is going to make by the ischiofemoral ligament. So what we are going to deduce here, ठीक है, is that the hip joint, it is covered by a strong capsule, it is covered by a strong ligaments. ठीक है? Now we talk about the arthrokinematics. ठीक है? So वो कहते हैं कि हिप जॉइंट की आर्थ्रोकाइनामेटिक्स दो तरीकों से डिस्क्राइब की जा सकती है। एक तो तरीका क्या है कि जब आपके डिस्टल फीमर मूव करे और pelvis आपकी स्टेबल रहे। ठीक है? एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि जब आपकी फीमर स्टेबलाइज रहे और आपके pelvis मूव करे। ठीक है? नाउ व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, अब वो कहते हैं कि लेट्स से आप वॉक कर रहे हो या अगर आप खड़े हो, ठीक है, और आप खड़े होके ट्रंक को बेंड कर रहे हो in the forward direction or in the backward direction or in the lateral directions, the femur remains stable here and the pelvic moves, ठीक है, along with the movement of the spine, ठीक है, and when you are walking, ठीक है, then your femur is going to be moving while the pelvis remains static. ठीक है? So the arthrokinematics can be explained in two ways. ठीक है? Now, if we talk about the femur, ठीक है, कि if the femur is moving and the pelvis remains static, ठीक है, then we came to know that the convex to concave rule is going to apply here. ठीक है, as the femoral head, the one that is going to move, it is convex articular surface, and the acetabulum, which is going to remain stable throughout the movement. It remains static. ठीक है, so what is going to uh, which rule is going to be applied here? That is the convex to concave rule. ठीक है, which means that whenever the femur is moving in one direction, its gliding, ठीक है, will be in opposite direction. ठीक है, if the femur is moving in extension, ठीक है, there will be a gliding in the anterior direction. If the hip is going to move in flexion, the hip is going to slide in the posterior direction. ठीक है, if the hip is going to abduct, ठीक है, it slides inferiorly, and if the hip joint is going to adduct, the its gliding is in superior direction.
ठीक है, and same to same, if the hip is moving in external rotation, the gliding will be anteriorly, and if the hip joint is moving in internal rotation, the gliding is posteriorly. ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं मोशन ऑफ द pelvis। ठीक है, वो कहते हैं कि जब pelvis आपकी मूव करे और आपकी फीमर स्टैटिक रहे, तो फिर कौन सा रूल अप्लाई होगा? फिर इसके उलट रूल अप्लाई होगा, जिसमें आपकी कनकेव आर्टिकुलर सरफेस मूव करेगी और जो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है वो स्टेबल रहेगी। ठीक है, अब वो कहता है इसकी इसका क्या होगा? इसका ऑब्वियसली यही होगा कि आपकी जो भी मूवमेंट हो रही होगी pelvis की, ठीक है, द ग्लाइडिंग विल बी इन द सेम डायरेक्शन टू द रोलिंग एंड द टुवर्ड्स द फिजियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द bone। ठीक है, if the pelvis is moving in the anterior direction, there will be a anterior gliding. If the pelvis is moving posteriorly, there will be posterior gliding। ठीक है, if the pelvis is moving in the inferior direction, just like pelvic drop, then the pelvis is going to be the pelvis glides in the inferior direction, and if the pelvis is moving in the superior direction, that is in hip hiking, then the pelvis is going to glide in the superior direction as well। ठीक है, so here we are going to discover what is the functional relationship of the hips and the pelvis। ठीक है, सर how they are। जी बेटा। सर अगर फीमर मूव कर रही है और पेल्विस स्टैटिक है तो कन्वेक्स और कनकेव रूल है ना? जी, फिर कन्वेक्स टू कनकेव रूल है। ठीक है बेटा। अच्छा, यस सर। now how the pelvis and the hips they are going to be functionally related to each other। ठीक है, वो कहते हैं कि it all depends on the pelvic movements and the muscular functions। ठीक है, they are related with the help of the muscles। ठीक है, ठीक है, they are interrelated by the articulations they have। ठीक है, so the pelvis links to the femur or to the lower extremity। ठीक है, by the hip joint। ठीक है, they have a direct relation। ठीक है, through the articulation, and secondly they have the pelvis in return have a direct relation with the spine। ठीक है, secondly the muscles acting at the femur or controlling the hip joint movements, they have their origin either from the pelvis। ठीक है, and they have their origin either from the spine। ठीक है, so they are connected to each other in this way as well। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी whenever your hip is going to be moved। ठीक है, whenever your hip is going to be moved means the pelvis remains stable। ठीक है, and the femur is going to be moved, the distal bone is going to be moved, your pelvis remains stable by the contraction of abdominal muscles। ठीक है, सही है, ऐसे ही है ना, आपके जो abdominal muscles हैं वो आपके pelvis को स्टेबल करेंगे तो आपके हिप जॉइंट मूव करेगी। सेम टू सेम ऐसे ही है बेटा, जैसे स्कैपुलो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन है। ठीक है, आपकी जो स्कैपुला है वो स्टेबल रहेगी तो आपकी ह्यूमरस मूव करना शुरू करेगी। ठीक हो गया, उसके बाद वो कहता है कि देयर इज अ लंबो पेल्विक रिदम जस्ट लाइक स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। जी, ह्यूमरस मूव करेगी तो आपकी स्कैपुला भी मूव करेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि देयर इज अ लंबो पेल्विक रिदम। ठीक है, व्हेन एवर द pelvis इज गोइंग टू मूव, ठीक है, द लंबर इज गोइंग टू मूव अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जी
how there is a lumbo-pelvic rhythm here. ठीक है, this is best seen in the forward bending of the lumbar spine or the forward bending of the trunk. ठीक है, वो कहते हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो स्टार्ट होती है आपकी टॉप से. ठीक है, कि सबसे पहले आपका हेड जो होता है वो फॉरवर्डली बेंड होता है. ठीक है, उसके बाद आपकी नेक फॉरवर्डली बेंड होती है, फिर आपका थोरैक्स और फिर आपकी लंबर स्पाइन. ठीक हो गया. अब वो कहते हैं कि जैसे ही आपका हेड मूव करता है फॉरवर्डली, ठीक है, तो आपकी जो pelvis होती है, ठीक है, ये थोड़ा-सा बैकवर्डली मूव चली जाती है, बैकवर्डली ट्रांसलेट कर जाती है. वो कहता है कि व्हाई द pelvis इज गोइंग टू ट्रांसलेट इन द posterior डायरेक्शन व्हेनेवर द हेड इज गोइंग टू flex or whenever the head is decided to go into the flexed position. ठीक है, टू स्टार्ट द फॉरवर्ड बेंडिंग. वैसे तो हेड बेंडिंग, सिंपली हेड बेंडिंग अगर बैठे बैठे हेड बेंडिंग करनी है तो पेल्विस के ऊपर कोई असर नहीं होगा. अगर बैठे बैठे नेक बेंड करनी है तो भी पेल्विस के ऊपर कोई असर नहीं होगा. लेकिन जब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए आपका हेड बेंड करेगा इन एंटीरियर डायरेक्शन, ठीक है, तो आपकी जो सबसे पहली जो आपकी मूवमेंट है वो किसके ऊपर हो रही है? हेड के ऊपर हो रही है. ठीक है, वेन एवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द ट्रंक. ठीक है, अब वो कहता है कि जैसे ही आपका हेड मूव करता है इंटीरियर डायरेक्शन में या बेंडिंग में, ठीक है, तो आपकी जो pelvis होती है इट इज गोइंग टू मूव और ट्रांसलेट पोस्टीरियरली. व्हाई तो इट लाइन ऑफ हैपेंस? ग्रेविटी की वजह से, लाइन ऑफ ग्रेविटी को यस, मेंटेन करने के लिए। यस, yes, it is. Why it happens? Because to maintain the center of the gravity, ठीक है, it happens to maintain an erect posture. अगर pelvis आपकी ट्रांसलेट ना करे पोस्टीरियर डायरेक्शन में तो फिर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू bend your trunk or you are not going to forward move your trunk upper body on the hip joint forwardly. ठीक है, अगर आपकी pelvis जो है वो ट्रांसलेट ना करे पोस्टीरियर डायरेक्शन में. ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपकी हेड ने बेंड कर लिया, हेड की फॉरवर्ड बेंडिंग कंप्लीट हो गई, फिर आपकी नेक बेंड करना शुरू करेगी और नेक की फॉरवर्ड बेंडिंग कंप्लीट हो जाएगी. इसी तरीके से आपकी सर्वाइकल स्पाइन और द थोरैसिक स्पाइन और लंबर स्पाइन ये भी फॉरवर्डली बेंड करेंगे जितना जितना इनके हिस्से में आता है. ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री बन जाती है आपकी बेंडिंग. ठीक है, ये पहले जो 45 डिग्रीज हैं बेंडिंग के ये कंप्लीट हो जाते हैं. जैसे ही ये 45 डिग्रीज बेंडिंग के कंप्लीट होते हैं तो अब क्या होता है कि जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, फैसेट जॉइंट्स हैं या आपके लिगामेंट्स हैं, वो आपकी स्पाइन के टाइट हो चुके होते हैं, वो टॉट हो चुके होते हैं. इससे ज़्यादा जो मूवमेंट है 46, 47, 48 डिग्री की वो पॉसिबल नहीं होती आपकी स्पाइन में. ठीक है, सो हियर योर हिप जॉइंट इज गोइंग टू स्टार्ट मूविंग. ठीक है, जैसे ही ये 45 डिग्रीज अचीव हो जाते हैं तो फिर आपके जो हिप जॉइंट हैं, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी मूव्ड. ठीक है, और दे आर गोइंग टू बी मूव इन द बेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक हो गया. उसके बाद वो कहता है कि ये जो फाइनल मूवमेंट होती है, ठीक है, जो फाइनल रेंज ऑफ मोशन होती है, ठीक है, इट कैन बी इंक्रीज्ड. ठीक है, इन इंडिविजुअल्स विद एक्टिव लाइफस्टाइल्स. ठीक है, ऐसे जो पेशेंट्स जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है उनमें जो एंड रेंज ऑफ मोशन होती है ट्रंक बेंडिंग की वो इंक्रीज हो जाती है. और जो इनएक्टिव पीपल होते हैं उनमें ये जो टर्मिनल फ्लेक्शन होती है, ठीक है, या टर्मिनल मूवमेंट होती है, ये क्या हो जाती है आपकी रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैथोमैकेनिक्स. ठीक है, ऑफ द हिप जॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, वेरी मच इम्पोर्टेंट. So, if we talk about the mechanics, that is, we are going to start with the lateral pelvic tilt. As you all know about the anterior pelvic tilt as well as the posterior pelvic tilt. ठीक है, आप सबको पता है कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इंटीरियर pelvic tilting में और कौन से मसल्स
इन्वॉल्व होते हैं इन पोस्टीरियर पेल्विक टिल्टिंग। ठीक है, पता है ना सबको। मैंने आप लोगों को पोस्ट स्पाइन पोस्चर से रिलेटेड जो पढ़ाया था उसमें यही सब कुछ ही पढ़ाया कि व्हाट इज इंटीरियर pelvic tilt एंड व्हाट इज posterior pelvic tilt। ठीक है, here you are going to know about the lateral pelvic tilt as well। ठीक है, वो कहता है कि फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स, ठीक है, सही है, वो आपकी क्या कहलाती हैं, लेटरल पेल्विक टिल्ट कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि हम पेल्विक मूवमेंट को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं जिस तरीके से हम हिप जॉइंट की मूवमेंट के लिए क्या रेफरेंस बनाते हैं, या फीमर को या पेल्विस को, इसी तरीके से पेल्विस की मूवमेंट को हम रेफरेंस बनाते हैं इलियक क्रस्ट को। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि जी वो साइड, ठीक है, जिसमें एलिवेशन हुई हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हिप हाइकिंग। ठीक है, सही है, जब भी आपका पेल्विस एलिवेट करेगी हम उसको क्या कहेंगे कि इट इज एन हिप हाइकिंग। और जिस साइड के ऊपर आपके पेल्विस जो है वो एलिवेट कर रही है, उस साइड के ऊपर आपके हिप जॉइंट की एडक्शन होगी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से सुन लें। कहते हैं कि जब भी आपके पेल्विस एलिवेट करेगी, आपकी हिप जॉइंट किस में जाएगी, एडक्शन में जाएगी। ठीक है, सही है, आपकी हिप जॉइंट जो है वो एबडक्शन में नहीं जाएगी जब भी आपके पेल्विस जो है वो एलिवेट करेगी। उस साइड के ऊपर एलिवेशन होगी जिस साइड के ऊपर आपके हिप जॉइंट जो है वो एडक्शन में जाए। ठीक है, उस साइड के ऊपर लोअरिंग होगी जिस साइड के ऊपर आपके हिप जॉइंट एबडक्शन में जाए। ठीक है, सो हिप ड्रॉप क्या है कि वो कहता है कि जब पेल्विस जो है वो ड्रॉप कर जाए, ठीक है, किसी साइड के ऊपर। ठीक है, वो कहता है कि वो ड्रॉप तब आता है जब आपकी जो हिप जॉइंट है वो एबडक्शन में जाती है। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लंबर स्पाइन, ठीक है, हमने तो पहले तो पेल्विस की एलिवेशन और लोअरिंग की बात की है ना, कि पेल्विस एलिवेट करेगी या लोअर करेगी तो आपके हिप जॉइंट के ऊपर क्या होगा। अब इसी तरीके से जब आपके पेल्विस मूव करे तो आपकी स्पाइन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। वो कहते हैं कि अगर तो आपके पेल्विस एलिवेट करती है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि लंबर स्पाइन जो है वो उसी साइड के ऊपर आपके फ्लेक्स कर जाएगी। ठीक है, जिस साइड के ऊपर आपकी पेल्विस की एलिवेशन है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि पेल्विस अगर राइट साइड की एलिवेट की है तो आपकी जो लंबर स्पाइन है वो राइट साइड के ऊपर बेंड कर जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि ये इनमें मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं इनमें मसल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है, और इसके अलावा वो कहते हैं कि ग्लूटियस मीडियस, ठीक है, रिवर्स पुल ऑफ ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इस पिक्चर में आप लोग बेटा जरा देखें, ठीक है, कि मिनट जी, ये आपके पेल्विस जो है इस साइड के ऊपर आपके पेल्विस एलिवेट हो रही है। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज एलिवेटिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो आपकी जो लंबर स्पाइन है वो भी क्या कर रही है, इसी साइड के ऊपर आपकी बेंड हो रही है। अब वो कहते हैं देखो लंबर स्पाइन अगर आपकी इस साइड के ऊपर बेंड हो रही है तो कन्वेक्सिटी किस साइड की बनेगी, ऑपोजिट साइड की कन्वेक्सिटी बनेगी। कनकेविटी सेम साइड की बनेगी लेकिन कन्वेक्सिटी किस साइड की बनेगी, ऑपोजिट साइड की बनेगी। ठीक है, जिस साइड के ऊपर आपकी पेल्विस एलिवेट करी होगी उस साइड के ऊपर आपकी क्या बनेगी, कनकेविटी बनेगी। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि पेल्विक की रोटेशन। ठीक है, वो कहता है पेल्विस जो है वो रोटेट कर सकती है अगर तो आपकी दोनों फीमर्स जो हैं, ठीक है, वो स्टेबलाइज हैं, ठीक है, या ग्राउंडेड हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली आपकी पेल्विस रोटेट नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप सिंगल स्टैंडर्डली खड़े हो, ठीक है, एक ही टांग के ऊपर खड़े हो, ठीक है, तो फिर आपकी जो पेल्विस है वो आपकी उस हिप जॉइंट के ऊपर मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि जब भी आपकी जो पेल्विस है, ठीक है, वो साइड जो आपकी सपोर्टेड नहीं है,
ऑब्वियसली जो साइड आपकी सपोर्टेड होगी मींस जो आपकी साइड इन कांटेक्ट है विद द फ्लोर, ठीक है, वो साइड आपकी रोटेट नहीं कर रही, आपकी साइड वही रोटेट करेगी जो इसके ऑपोजिट है, ठीक है। मैं पेल्विस की बात कर रहा हूँ। पेल्विस जो आपकी फीमर सपोर्टेड नहीं है, लेट्स से लेफ्ट साइड की फीमर सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके पेल्विस पे लेफ्ट साइड की फॉरवर्डली अगर मूव करे तो उसको हम लोग फॉरवर्ड रोटेशन बोलते हैं, अगर बैकवर्डली रोटेट करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, आपकी बैकवर्ड रोटेशन बोलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि इसमें क्या होता है, अगर हम पेल्विस की और लंबर स्पाइन की बात करें तो इसमें वो कहता है अगर पेल्विस जो है वो आपकी रोटेट कर रही है एंटीरियर डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपकी लंबर स्पाइन जो है वो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड रोटेट करना शुरू करेगी, ठीक है। सही है, लंबर स्पाइन एज अ होल नहीं, सिर्फ जो आपका फिफ्थ लंबर स्पाइन है, ठीक है, वो आपका रोटेट करना शुरू करेगा ऑन द एंटीरियर डायरेक्शन। If the pelvis is going to move in the anterior direction, your spine or the lumbar segments they are going to move in the posterior direction, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जी ये सिमेट्रिकल लेग लेंथ, ठीक है, वो कहता है कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजी दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द हिप जॉइंट, ठीक है। वो कहता है कि लेग लेंथ में डिस्क्रिपेंसी आ जाना, ठीक है, मैंने एक दफा शायद पहले भी आप लोगों को बताया हो कि आपकी फीमर किसी की फीमर छोटी रह जाए, ठीक है, बाय मोर देन एन इंच, ठीक है, और बाय मोर देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर आपकी टांग एक 2-2.5 सेंटीमीटर भी छोटी रह जाए तो वो काफी सिग्निफिकेंट होती है, और उसमें पेशेंट का जो गेट होता है या जो इंडिविजुअल का गेट होता है वो साफ नजर आता है कि इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, ठीक है, इट इज नॉट एज नॉर्मल एज ऑफ द नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है। सो वो कहते हैं कि एक साइड जिस साइड की वो कहते हैं आपकी लेग छोटी रह जाती है या फीमर छोटी रह जाए, ठीक है, वो उसमें फीमर भी छोटी हो सकती है, उसमें टिबिया भी छोटी हो सकती है, ठीक है। मैं पहले शायद एक दफा कभी बताया हो कि अगर आपने फीमर की लेंथ को चेक करना हो तो आप एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से रेफरेंस लेते हैं टुवर्ड्स द मीडियल मेलियोलस, ठीक है, और यू कैन टेक एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन एज अ reference point and on the opposite uh, on the opposite side of the medial malleolus you can take lateral malleolus to determine the length of the leg, ठीक है। अगर तो वो कहते हैं कि इस लेंथ में कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए तो फिर हमें ये देखना होता है कि वेदर द फीमर इज गोइंग टू बी शॉर्टेंड और वेदर द टिबिया इज गोइंग टू बी शॉर्टेंड, ठीक है, उसका हमें कैसे पता चलेगा। वो कहते हैं कि सिर्फ एक चीज को देख लो तो आपको पता चल जाएगा वेदर टिबिया इज इन्वॉल्व वेदर द फीमर इज इन्वॉल्व। उसमें कैसे होगा कि आप प्रोन पोजीशन में लिटा के पेशेंट को हिप को हिप को न्यूट्रल पोजीशन में रखोगे और नीज को आप फ्लेक्स करोगे टू द 90 डिग्री। कहते हैं ये जो आपके हिप फ्लेक्शन है, नी जॉइंट की जो फ्लेक्शन है 90 डिग्रीज के ऊपर, ये एक्चुअली आपके जो प्लांटर सरफेस है फुट की उसको वो आपको शो करेगी ऑन द अबव साइड, ठीक है। जब आप प्रॉन पोजीशन में लेट के नीज को बेंड करते हो 90 डिग्रीज पर तो आपको क्या नजर आएगा, आपको प्लांटर सरफेस नजर आएगी किसकी, फुट की, ठीक है। तो वो कहते हैं ये जो प्लांटर सरफेस होती है इसको हम इसका लेवल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्लांटर सरफेस हाई होगी इट मींस कि वो टांग ठीक है, और जो आपकी लोअर होगी प्लांटर सरफेस उसको हम लोग क्या कहते हैं कि डेट इज गोइंग टू बी द लोअर वन, ठीक है। इस टिबिया का इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आ रही है, ठीक हो गया। वो कहते हैं ये जो अगर तो टिबिया यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ जाए, ठीक है, प्लांटर सरफेस ऑफ फुट लेवल्ड ना हो तो इट मींस के ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इट इज गोइंग टू अफेक्ट द हिप जॉइंट एज वेल, ठीक है। सर एक अब वो बात कहता है बताइए, कि बोन की वजह से लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आ सकती है या इस तरह भी हो सकता है कि मसल अगर इतने ज्यादा टाइटन हो गए हैं एक लेग के
कोई ऑपरेशन या उसकी सर्जरी हुई है उसकी वजह और से भी उसके आ बाद मूव नहीं सकती किया, तो पॉसिबली है उसमें है भी। उसकी। यस, यस बेटा, टाइटनेस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, ठीक है, जैसे कि अगर आपका हिप जो है वो एडक्टेड पोजीशन में जाना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वहाँ की पेल्विस, जैसे मैंने पहले बात की है कि अगर पेल्विस आपकी एलिवेट करेगी तो आपका उस साइड का हिप जॉइंट एडक्शन में जाएगा। अगर आपका हिप एडक्शन में जा रहा है तो आपके पेल्विस क्या कर जाएगी, उस साइड की एलिवेट कर जाएगी, दूसरी साइड की आपकी जो पेल्विस है वो क्या कर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी। समझ आई बात की? ठीक है। सो टाइटनेस की वजह से, मस्कुलर टाइटनेस की वजह से भी आपकी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, ठीक है। ओके सर। सर ये पॉइंट दोबारा बताइएगा कि हम प्रोन पोजीशन में लेट के नी को बेंड करके प्लांटर फ्लेक्शन करके देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, प्रोन पोजीशन में लेट के, ठीक है, आपने हिप को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, सिर्फ आपने नीज को बेंट रखना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है फ्रॉम द प्लिंथ, ठीक है, फ्रॉम द काउच 90 डिग्री का एंगल। जब आप 90 डिग्री का एंगल बना लेते हो, नी को फ्लेक्स कर लेते हो, ठीक है, तो फिर आपने फुट की जो प्लांटर सरफेस है आपने उनके लेवल चेक करना है, ठीक है, उनको आइज के लेवल पर चेक करना है कि क्या दोनों हील्स लेवल्ड हैं, ठीक है, अगर तो एक हील एलिवेटेड है, ठीक है, तो इट मींस के जो अपोजिट साइड की टिबिया है जिसकी हील का लेवल नीचे है, इट मींस कि वो टिबिया इन्वॉल्व है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी में। लेकिन वो कहता है अगर तो आपकी दोनों प्लांट हील्स जो हैं वो सेम लेवल के ऊपर हैं, लेकिन आपने वो विद द टेप मैयर आपने मैयर किया कि देयर इज लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी ऑफ द लोअर लेग, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, तो फिर आप क्या डायग्नोज करोगे कि ये जो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है ये टिबिया की शॉर्टनिंग से नहीं बल्कि फीमर की शॉर्टनिंग से आ रही है, ठीक है। अगर तो हील्स का लेवल नॉर्मल है, हील्स का लेवल एक ही लेवल पर है, ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई। सो वो कहते हैं कि दिस शॉर्टनिंग ऑफ द one side of the femur or the lower leg, it is associated with the scoliosis, ठीक है, जो कि हमने पहले बात की हुई है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि व्हाट इज कॉक्सा वेल्गा एंड कॉक्सा वेरा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि कॉक्सा वेल्गा आपका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विच इज गोइंग टू फॉर्म बिटवीन द femoral neck, ठीक है, एंड द shaft ऑफ द femur, अगर तो वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, 120 डिग्री से ज्यादा हो गया है, तो हम उसको बोलेंगे कॉक्सा वेल्गा। आप लोगों को कहीं पर ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज्यादा भी मिलेगा, कुछ ऑथर्स ने इसको 125 और 130 डिग्री तक भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तो वो कहते हैं आपको ज्यादा मिल रहा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, तो उसको हम कॉक्सा वेल्गा बोलते हैं, ठीक है, सही है। और अगर तो वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम हो रहा है, ठीक है, बिटवीन द फेमोरल नेक एंड द shaft ऑफ द फीमर, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉक्सा वेरा, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है ये याद रखना है, अगर नी हिप जॉइंट के ऊपर कॉक्सा वेल्गा होगा तो आपके नी जॉइंट के ऊपर कॉक्सा वेरा होगा, अगर हिप जॉइंट के ऊपर कॉक्सा वेरा होगा तो आपके कहते हैं अगर आपके हिप जॉइंट के ऊपर कॉक्सा वेरा होगा, ठीक है, तो आपके नी जॉइंट के ऊपर जीनू वेल्गस होगा, अगर कॉक्सा वेल्गस होगा हिप
जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, एक्चुअली बच्चों डिस्कनेक्शन हो गया था, ठीक है। पता नहीं जूम का सर्वर शायद लोअर हुआ है, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉक्सा वेल्गा एंड द कॉक्सा वेरा, ठीक है। वो कहते हैं कि जिस साइड का कॉक्सा वेरा होगा, आपकी उस साइड की जो लेग है वो शॉर्टर हो जाएगी। वाई इट इज गोइंग टू बी शॉर्टर? अब देखो, जहां पर नेक ऑफ फीमर में और शाफ्ट ऑफ फीमर का एंगल शॉर्टर हो जाएगा, इट मींस कि इट इज गोइंग इन एडक्टेड पोजीशन, ठीक है। तो जब भी एडक्टेड पोजीशन में जाएगी आपकी फीमर, ठीक है, तो इट मींस कि वहां की जो लेग होगी वो क्या हो जाएगी? शॉर्टर हो जाएगी, ठीक है। एंड इट इज वाइस वर्सा फॉर द कॉक्सा वल्गा, ठीक है। जहां पर आपके एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज्यादा हो जाएगी, उस साइड की आपकी जो फीमर होगी वो क्या हो जाएगी? लार्जर हो जाएगी इन साइज, ठीक है। Now, the second pathognomonical feature of the hip joint is anteversion and retroversion. वो कहते हैं एक्सक्यूज मी कि सर। जी बेटा। सर आप वो कह रहे थे कि अगर हिप हिप पे कब्जा वगैरह होगा तो जीनो वेलकम के मुतालिक भी आप कुछ बता रहे थे। जीनू, सॉरी अगर आप लोगों को जीनू का नहीं पता। जी, हम कॉग्जा यूज करते हैं हिप जॉइंट के लिए, जीनू यूज करते हैं नी जॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये कॉग्जा इज ठीक है फॉर सर। हिप जॉइंट एंड नी इज जीनू इज फॉर नी जॉइंट। अगर हिप जॉइंट के ऊपर कॉग्जा वेरा होगा, ठीक है, तो नी जॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा? जीनू वेलगम हो जाएगा, वेलकम। ठीक है। जीनू वेलगम हम नॉक नीज को भी बोलते हैं, ठीक है। अगर वहां पर वेरम होगा तो यहाँ पर नॉक नीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर वहां पे वेलगस होगा, ठीक है, तो जीनू वेरस हो जाएगा, ठीक है। और वेरस क्या होता है कि जिसमें आपके नी जॉइंट्स अपार्ट हो जाते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा मिड लाइन से अवे मूव कर जाते हैं, उसको हम लोग जीनू वेरम बोलते हैं। सो दे आर वाइस वर्सा, दे हैव इनवर्स रिलेशन विद ईच अदर, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज एंटीवर्जन एंड रेट्रोवर्जन। वो कहते हैं कि जब आपका एंगल ऑफ टॉर्शन, ठीक है, किसका? फिमोरल नेक का, जो कि एंगल ऑफ टॉर्शन किस में बन रहा था? फिमोरल नेक में और फिमोरल कंडाइल्स में। अगर दैट एंगल ऑफ टॉर्शन इज गोइंग टू इंक्रीज्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीवर्टेड है आपको ये फीमर, ठीक है। और अगर वो कहता है कि फिमोरल नेक का और फिमोरल कंडाइल्स का अगर जो एंगल ऑफ टॉर्शन है वो डिक्रीज कर जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज रेट्रोवर्जन, ठीक है। अब वो कहता है कि जब भी एंटीवर्टेड होती है आपकी फीमर, ठीक है, तो आपकी मीडियल रोटेशन ज्यादा हो जाती है हिप जॉइंट के ऊपर। और जब भी वो कहता है कि आपकी जो रेट्रोवर्जन होती है, तो आपकी लेटरल रोटेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक हो गया? सही है। सो दैट इज हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि देर इज अ चांस कि अगर आपकी फीमर जो है एंटीवर्टेड है, ठीक है, तो उसमें उसकी वजह से भी आपकी नीज के ऊपर जिन्नू वेलगस डेवलप हो जाए और फुट के ऊपर प्लानस डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाए। आप सबको पता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लानस? प्लानस इज फॉर फ्लैट फुट, ठीक है। एंड जिन्नू वेलगस इज फॉर नॉक नीज, दोनों नीज का करीब आ जाना, या नी का मीडियल लाइन की तरफ, मिड लाइन की तरफ मूव कर जाना, दैट इज जिन्नू वेलगस, ठीक है। कहते हैं कि अगर एंटीवर्जन हो तो उसकी वजह से आपकी उस साइड, जिस साइड के ऊपर एंटीवर्जन होगी, उस साइड के ऊपर आपकी लेग भी शॉर्टर हो सकती है, ठीक है। जहां पर आपका एंगल ऑफ टॉर्शन इंक्रीज कर रहा है बिटवीन द femoral नेक एंड द femoral condyles, ठीक है। टॉर्शनल एंगल है, ठीक है। हाउ मच femoral condyles they are rotated, ठीक है, in with respect to the femoral neck, or how much femoral neck is rotated with respect to the condyles, ठीक है।
ये उसी तरीके से है कि जैसे आप कोई कैंडी लेते हो, ठीक है, सॉफ्ट सी कोई कैंडी हो, ठीक है, लेग्जिटी हो जिसके अंदर, जो कि ब्रेक ना हो इजीली, तो हम उस कैंडी को, ठीक है, फ्रॉम द टॉप, ठीक है, हम उसको रोटेट करना शुरू करें, तो वो जो बॉटम होता है वो क्या करता है, वो स्टेबल रहता है और आपकी रोटेशन होती जाती है। ऐसे ही है ना, ठीक है, कोई सॉफ्ट सी कैंडी हो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी टॉर्शनल एंगल ऐसे बनता है कि हाउ मच इट इज रोटेटेड either with respect to the femoral condyles or with respect to the femoral neck। ठीक हो गया, सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिप जॉइंट। इसमें सबसे इसके अलावा जो बेटा सेकंड इम्पोर्टेंट चीज है वो है, आप लोग अपने कोई पेंसिल और अपने साथ कोई रखें, पेज लें, ठीक है। मैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द गेट, ठीक है। द गेट साइकिल is divided into two parts. The one is the swing phase and the other one is the stance phase। ठीक है, swing phase जो है, ठीक है, it constitutes 40% of the gait cycle, whereas the stance phase it constitute about 60% of the gait cycle। ठीक है, वो कहते हैं कि हिप जॉइंट का क्या फंक्शन है इन द स्टैंस फेज, हिप जॉइंट का क्या फंक्शन है इन द स्विंग फेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द स्टैंस फेज एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्विंग फेज। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो स्टैंस फेज है, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं आपके फोर स्टेजेस के अंदर, ठीक है, आपके स्विंग फेज को। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो स्टैंस फेज है, ठीक है, स्टैंस फेज को हम लोगों ने डिवाइड किया है इनटू द फोर फेजेस। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द हील कॉन्टेक्ट, द सेकंड वन इज द लोडिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द मिड स्टैंस, ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज द टर्मिनल स्टैंस। इसी तरीके से जो आपकी स्विंग फेज होती है उसको भी हम लोग फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द वन इज द प्री स्विंग, the second one is the initial swing phase, ठीक है, the third one is the mid swing phase, ठीक है, और the fourth one is the late swing phase। ठीक है ना, समझ आ गई बात की। so four are the parts of the swing phase and four are the parts of the stance phase। ठीक है, वो कहता है हिप जॉइंट की क्या क्या मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं ड्यूरिंग द स्टैंस phase। तो वो कहता है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू स्ट्राइक द फुट विद द ग्राउंड, और वेन एवर योर हील इज गोइंग टू स्ट्राइक विद द फुट, ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियल कॉन्टेक्ट फेज, योर इनिशियल कॉन्टेक्ट स्टेज ऑफ द stance phase, ठीक है, there will be the hip joint will be flexed to almost 30 degrees। ठीक है, सही है, जब भी आपकी हील स्ट्राइक करेगी फ्लोर के साथ तो आपकी जो हिप के ऊपर मूवमेंट होगी वो कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। ठीक है, 30 डिग्री ये एवरेज है। 30 डिग्री से कम होगी तो भी पैथोलॉजिकल होगी, 30 डिग्री से ज्यादा होगी तो भी पैथोलॉजिकल होगी। ठीक हो गया, उसके बाद वो कहते हैं व्हेन द ड्यूरिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टैंस फेज, दैट इज द लोडिंग रिस्पॉन्स फेज। ठीक है, वो कहते हैं कि जब लोडिंग रिस्पॉन्स फेज आता है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं कि इनिशियल कॉन्टेक्ट से आप कहाँ पर जा रहा है, फुट फ्लैट की तरफ जा रहा है। ठीक है, फुट फ्लैट का मतलब क्या होता है कि अब जो है आपकी जो बॉडी है वो वेट बेयर करना शुरू करेगी उस साइड के ऊपर जिस साइड की हील ने स्ट्राइक किया है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इन ड्यूरिंग दिस द हिप इज गोइंग टू मूव इन एक्सटेंशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपका जो हिप है वो एक्सटेंशन में जाएगा। ठीक हो गया, उसके वो कहते हैं मिड स्टैंस, जो थर्ड स्टेज है आपके
गेट साइकिल की, ठीक है। उसमें वो कहते हैं जो आपका हिप जॉइंट है, ठीक है, वो 10 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, मतलब इनिशियल कॉन्टेक्ट में कितना था, 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, ठीक है। लोडिंग रिस्पॉन्स में कितना हुआ, 30 से 10 डिग्री तक आ गया, ठीक है। मतलब 30 से 29, 28, 27, 26, 25, आहिस्ता आहिस्ता काम होते होते हिप की फ्लेक्शन कहाँ तक आ गई, 10 डिग्री ऑफ हिप फ्लेक्शन रह गई। अब वो कहते हैं जो मिड स्टांस होगा उसमें 10 डिग्री हिप फ्लेक्शन जो है वो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से कहाँ तक जाएगी, एक्सटेंशन तक जाएगी, ठीक है। आपका हिप एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि हील ऑफ, ठीक है, जो फोर्थ स्टेज है, ठीक है, उसमें वो कहता है कि आपका जो हिप है, ठीक है, वो हाइपर एक्सटेंशन में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो 0 डिग्री से न्यूट्रल पोजीशन से आपका हिप किस में जा रहा है, 10 to 13 डिग्री की हिप एक्सटेंशन में जा रहा है। बेटा बच्चों 1 मिनट रुकिएगा। जी बच्चों, so we were talking about the gait cycle, ठीक है, and we are on the fourth stage of the stance phase, that is the heel off, ठीक है, when the now this is the phase where the heel is going to be off, ठीक है, while the other part of the foot it is going to remain there with that is going to be contacted with the floor, but the heel has been offed, ठीक है। So during this phase, ठीक है, and there will be then the hip joint that is going to move in hyperextension, ठीक है, from neutral position, ठीक है, it is neutral position of the uh, mid stance phase, ठीक है, it is going into hyperextension during the heel off phase, ठीक है, 10 to 13 degree of heel off phase, ठीक है। Now this is all about the stance phase, ठीक है, and if we talk about the second phase, that is the swing phase, ठीक है, of the gait cycle, so we start with the toe off, ठीक है। जब पहले मैंने बात की थी कि जी हील ऑफ हो गई है, लेकिन जो आपका फ्रंट फुट का पोर्शन होता है वो कांटेक्ट में रहता है विद द फ्लोर, ठीक है। नाउ द टो इज आल्सो गोइंग टू बी ऑफ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस टो ऑफ पोजीशन, ठीक है, हिप जो है वो दोबारा हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन से न्यूट्रल एक्सटेंशन की तरफ आता है, ठीक है, टुवर्ड्स द न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है। और इन द सेकंड फेज, ठीक है, ऑफ द गेट साइकिल, दैट इज द अर्ली स्विंग फेज, ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि जो आपकी हिप जॉइंट है, ठीक है, इट विल मूव एक्सटेंड्स, ठीक है, फर्स्ट इट एक्सटेंड्स टू, ठीक है, एंड देन इट मूव्स इनटू फ्लेक्शन, ठीक है, with the help of the contraction of iliopsoas muscle, ठीक है, during the early swing phase, during the mid swing phase, ठीक है, सर ये जो, जी बेटा, सर इनिशियल स्ट्रिंग दोबारा बता दें, आवाज कट गई थी। अच्छा, इनिशियल अर्ली स्विंग फेज, ठीक है, अर्ली स्विंग फेज में जो आपका हिप जॉइंट है, जैसा कि मैंने पहले बात की कि टो ऑफ में जो आपका हिप जॉइंट होगा वो हाइपर एक्सटेंशन से
लेस एक्सटेंशन की तरफ आता है, न्यूट्रल पोजीशन की तरफ आता है। तो जब अर्ली स्विंग आने लगती है तो अर्ली स्विंग से आपका जो हिप जॉइंट होता है वो फिर थोड़ा सा एक्सटेंशन में जाता है, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन से एक्सटेंशन में जाएगा और फिर क्या करेगा, फ्लेक्शन में जाता है टू 10 टू 20 डिग्रीज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलियोसॉस कॉन्ट्रेक्शन। इलियोसॉस आपका हिप फ्लेक्सर है, हिप फ्लेक्सर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका हिप जॉइंट 20 डिग्री ऑफ हिप फ्लेक्शन में जाएगा। नाउ ड्यूरिंग द मिड स्विंग फेज the hip is going to move in 30 degree of hip flexion, ठीक है, by the contraction of adductors muscle and by the contraction of iliopsoas, ठीक है। ये जो adductor muscles हैं they are important, ठीक है, they are going to be important in maintaining the magnitude of the forces, ठीक है। So that's why they are contracting either in the mid swing phase, ठीक है, either in the stance phase, ठीक है। So during the mid swing phase, the hip is going to be flexed to 30 degrees with the help of iliopsoas contraction. Or during the late swing phase, ठीक है, the hip is further move in 20 to 25 to 30 degrees of hip flexion with the help of iliopsoas contraction. ठीक है. So here there are four, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। गेट साइकिल में 4 स्टेजेस हैं स्टैंस फेज की, 4 स्टेजेस हैं आपकी स्विंग फेज की, ठीक है। जो स्टैंस फेज है, ठीक है, उसमें आपकी हिप जॉइंट जो है वो फ्लेक्शन से एक्सटेंशन की तरफ जा रही है, न्यूट्रल पोजीशन की तरफ जा रही है और यहाँ तक कि न्यूट्रल से हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन की तरफ चली जाती है, ठीक है। और स्विंग फेज में वो हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन से न्यूट्रल पोजीशन की तरफ आ रही है और न्यूट्रल से किसकी तरफ जा रही है, towards the hip flexion, ठीक है। So there are 4 stages, ठीक है, hip flexion, 4 phases of stance phase and 4 phases of the swing phase। टोटल आपके पास 8 phases हैं stance phase की और swing phase की, ठीक हो गया। और टोटल गेट साइकिल की 8 phases हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम it is being in covered by the stance phase, not by the swing phase। मतलब 60% जो है वो that is going to constitute the gait cycle by the stance phase and 40% of the gait cycle is constituted by the swing phase, ठीक है। So जैसे जैसे we are going to have the anatomy of the joint, whether it is the knee joint or whether it is the and ankle joint, we are going to discuss this gait cycle at the end of each joint, ठीक है, after the anatomy, ठीक है बेटा। any questions? So this is all about the hip joint। सर सर नॉन मिड रिलेटेड। स्टैंस में सर मिड स्टैंस में एंगल आपने 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन बताया है। मिड स्टैंस में यस 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन नहीं होता, 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन से कम हो जाता है मिड स्टैंस में। मिड स्टैंस तो आपकी थर्ड फेज है ना बेटा, ठीक है, उसमें आपकी जी 30 डिग्री हिप फ्लेक्शन से न्यूट्रल पोजीशन की तरफ आ रहा होता है, उसमें सिर्फ 10 डिग्री फ्लेक्शन रह जाती है, 30 से 10 डिग्री रह जाती है, ठीक है। और फिर सर लेट स्विंग में जो 25 लेट आपकी जी जो आपकी लेट स्विंग है उसमें 25 से 30 डिग्री तक फ्लेक्शन होती है, फर्दर फ्लेक्शन होती है। एक तो प्री स्विंग है ना, उसमें आपकी न्यूट्रल से फ्लेक्शन की तरफ जाएगा हिप, मिड स्विंग में 30 डिग्री फ्लेक्शन होगी और जो लेट स्विंग होता है उसमें फर्दर 25 से 30 डिग्री की फ्लेक्शन होती है, ठीक है। ये फ्लेक्शन एड अप होती है ना, डिपेंड कर रहा होता है कि एक बंदे की कितनी स्ट्राइड लेंथ है। स्ट्राइड लेंथ का पता है, स्टेप लेंथ कितनी है, सॉरी स्टेप लेंथ कितनी है। एक कोई इंसान कोई भी इंडिविजुअल होता है वो एक लंबा स्टेप लेके चलता है, एक इंडिविजुअल है जो कि शॉर्टर स्टेप लेके चल रहा है, तो दोनों में ऑब्वियसली हिप की जो मूवमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, वेरी करेगी ना। ये अब नॉर्मली एक एवरेज है कि जी इतनी मूवमेंट होनी चाहिए पॉसिबल, ठीक है, टू शो अ प्रॉपर गेट साइकिल, ठीक है। जी सर।
Sir, Anyone not related to the lecture, but sir, actually हमें confirm कर दें when is our oral quiz gonna be held? Sir 21 को है। और सर हमने अभी अभी जहमत की जब लेक्चर्स देखने की तो सर 8 लेक्चर्स बन रहे हैं। सर हमारा जनाजा निकल जाएगा, प्लीज सर थोड़ा रहम खाएं। सर बेटा लेक्चर तो जनाजा कम कर कैसे दें, अल्लाह माफ हमारा तो करे। एससीपी का भी पेपर है, साथ इलेक्ट्रो का भी पेपर है सर और एससीपी साथ के भी आज असाइनमेंट्स भी वाइवा मिली हुई हैं तो और वाइवाज कल है भी हमने हमारा वाइवा बेटा दिया है। देखें आप लोगों को when I have started the spine, I have told you all about KG. The spine is important. जो आप लोगों ने स्पाइन आप पढ़ लेनी है, शायद इससे बेहतर आप स्पाइन नहीं पढ़ पाओगे और इतनी एक्सक्लूसिवली नहीं पढ़ सकोगे उसको। to so start with now with me। आप स्पाइन पढ़ना शुरू करो साथ साथ। स्पाइन इज इम्पोर्टेंट। मैंने तो बेटा आप लोगों को पहले दिन से कहा है कि स्पाइन इम्पोर्टेंट है। सर आप दो दो सेकंड करके टेस्ट इम्पोर्टेंट ले लें, चीज देखो मतलब बेटा, एल्बो जॉइंट मैंने वैसे ही निकाल दिया है, ठीक है। रिस्ट जॉइंट सर है वो हमने आपको कर लिया था इम्पोर्टेंट, एल्बो जॉइंट। तो वो एल्बो जॉइंट डाल देता हूँ, रिस्ट जॉइंट निकाल देता हूँ। ये ऐसे रिस्ट कर जॉइंट लें। भी कर लिया हुआ है सर। आपने पिछले हफ्ते कहा था कि मैं रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट दोनों दूंगा और आपने कहा था बेटा इतना ही वो होगा, तो हमने वो कर लिया था। और अब सर हमारे तीन चार चीजें इतनी एक साथ आ गई बेटा हैं, हमें मैंने ये ऐसा इशू कुछ भी नहीं नहीं है। कहा। सर आप आपकी कौन हो रिकॉर्डिंग में भी है। बेटा? शाइस्ता खालिद आप बात कर रही हैं ना नहीं बेटा? नहीं मैं सर शीरी आपको बात कर रही है, शीरी बात कर रही है। नहीं, सर आपने मैं जब आपको रिस्ट पढ़ाई थी ना, सर बेटा जब मैंने आपने आपको ये रिस्ट किस दिन पढ़ाई कहा है कि ओरल टेस्ट, मेरी बात सुने, मैंने आपको किस दिन कहा है कि ओरल टेस्ट में एल्बो जॉइंट होगी और रिस्ट जॉइंट होगी, स्पाइन नहीं सर होगी, और आपने आपने कहा एल्बो था। जॉइंट तैयार कर ली। सर हमें याद करने में इशू नहीं है, याद तो हमने सारा ही करना है, मगर सर अभी सिलेबस बहुत बेटा ज्यादा है। पहले आप मुझे ये बताएं मैंने किस दिन कहा है, कौन से सर जब लेक्चर में आपने कहा? रिस्ट जॉइंट, सर 12 जब लेक्चर आपने रिस्ट जॉइंट पढ़ाया था ना, रिस्ट पढ़ाई थी सारी, तो सर आपने कहा था कि आपने ये अच्छे से करना है और ये आज ही याद करना है, ये मैंने अगले हफ्ते जो क्विज आपका लेना है ना उसमें मैंने यही देना है। तो मैंने ही आपको सर कहा था कि सिर्फ यही लेक्चर होंगे, तो आपने कहा था नहीं इसका एक और मसल्स का भी होगा। वो सर तो वैसे बेटा मैं आप तो लोगों की, आप भी सही है सर, हम बेटा भी मैं सही है सर। मैं आपकी, आई वॉज हमारा से टॉकिंग सर अबाउट कोई योर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्टिसिपेशन, आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट योर ओरल वाइवा, ठीक है। मैंने आप लोगों की डेली पार्टिसिपेशन के लिए आपको कहा था कि बेटा आप लोगों ने रोज का रोज याद करना है, मैं किसी भी टाइम सर अब सुन क्या, सकता हूँ। प्लीज अब कुछ कर दें, स्पाइन सर कर दे, सिर्फ थोड़ा स्पाइन तो कर कम कर दें सर, चले जो आपने वो टेस्ट में पहले दिए थे वो तो ना दें। चलिए सर बेटा सिर्फ स्पाइन कर दें, आगे हमारे एससीपी की भी हैं सर काइंडली। रिस्ट सर रहने दे, एससीपी का स्पाइन कर पेपर दे है सर। हमारा। यस बेटा सर आई हैव प्लीज। मैं बेटा आप लोगों काइंडली के साथ सर, पहले सर गुंजाइश, काइंडली। सर पहले कर दें। गुंजाइश कर चुका हूँ, ठीक सर है, कि देखें आप, आपकी एल्बम नहीं होगी, रिस्ट होगी और स्पाइन एक्सक्यूज मी होगी। सर। सर हम्म। अस्सलाम वालेकुम। बेटा एनी अदर क्वेश्चन? सर सर मेरी एक्चुअली क्लास, हमारे ना अचानक अनाउंस हुए एग्जाम, सर जी अचानक। सर प्लीज मान जाए। सर सिर्फ स्पाइन कर दें सर, आप भी चाहते हैं हमारी परफॉर्मेंस अच्छी सर हो ना, काफी आप भी ये नहीं बर्डन है चाहेंगे सर। कि हम काम चोरी करें सर, प्लीज। सर सिर्फ बेटा मैं स्पाइन कर दें सर, काइंडली रिक्वेस्ट बेटा है। मैं तो आप लोगों को अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप अच्छा नहीं पढ़ोगे तो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। सर 9 सब्जेक्ट्स हैं, हर बंदे नहीं अब सर हमारे वो हमारे आपकी ग्रुप में बात बढ़ ठीक है रही। बिल्कुल सर, अब वाइवा आगे आ गए हैं तो बेटा नाइन ठीक है, सब्जेक्ट्स वो नहीं आपकी उठाने बात थे की ना, बात तो कम सही। उठा लेने सर थे, छह सर हमने सब्जेक्ट थोड़ी उठा लेने उठाए हैं, थे। इन्होंने ही दिए हैं सर हमें, हम तो कभी अपनी मर्जी से उठाते ही नहीं है। बेटा आप लोगों की तो सर हमारी अपनी लो, परफॉर्मेंस आप लोगों की अपनी मर्जी होती है, आप लोग एड ड्रॉप नहीं करवाते, ड्रॉप करवा दो अभी। मगर सर अगर हम लोग नहीं सर क्रेडिट अब करेंगे आर जो तो ये होना पूरे लोग था करने हो हमें। गया ना, आप तो काइंडली कर देना, अब जो होना था तो क्रेडिट हो आर गया सर सर, प्लीज। क्रेडिट आर तो पूरे बेटा करने होते हैं, मैंने 21 आप मुझे क्रेडिट्स ये होते हैं। बताओ बेटा, एंड करते हैं इसको, आप लोगों का शायद लेक्चर भी है, 9:38 हो रहे हैं, आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर भी लेना सर होगा, तो सर आप बेटा रिस्ट यहाँ रहने क्विज पर से है कब? एल्बो ऐड कर दें, रिस्ट बहुत सर मुश्किल क्विज है। है कब? सर मेरी क्विज सर्जरी कब? की क्लास है, मैं बेटा जाऊँ 2 क्विज मिनट बाद 21। क्लास। हुमा फारूक बेटा, जी बेटा आप बात करें। सर मेरी सर्जरी की क्लास है, अभी 2 मिनट बाद मैम मीटिंग लॉक कर देंगी और मैं एंटर नहीं हो सकूंगी। कैन आई लीव दिस मीटिंग? जी 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 जी, जो बच्चा लीव करना चाहता है वो लीव कर दे, सर ठीक आप है। लिस्ट सेंड कर देंगे। जी बेटा, आज या कल में लिस्ट सेंड हो जाएगी, 21st इज द फाइनल डेट। टू टॉपिक्स आर इन्वॉल्व, द स्पाइन इज इन्वॉल्व, द रिस्ट जॉइंट इज इन्वॉल्व, ठीक है।
This is the सर end हमें of the रिकॉर्डिंग्स study. भी भेज सर रिस्ट दीजिएगा। में आपने रिस्ट जॉइंट में आपने मसल्स नहीं ना पढ़ाए, तो वो तो नहीं करने ना? ना कीजिएगा बेटा, ना कीजिए। ओके ठीक है, सर। रिस्ट जॉइंट निकाल दें। नहीं बेटा, सर कुछ फाइन करते हैं प्लीज सर। सर सर निकाल दे इसके बाद सर हम आपको प्लीज सर। इजाजत दे रहे हैं, आप बेशक एक सर और एग्जाम ले लीजिए। अभी तो आपने कहा था चले मैं रिस्ट जॉइंट निकाल देता हूँ। बेटा एक बच्ची बड़े वसूख से कह रही थी ना कि आपने कहा था एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व करें। ठीक है, मैंने ये कहा था कि आप एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट पढ़ें। मैंने स्पाइन निकाल दी थी, पता नहीं मैंने किस दिन ये बात कही। ठीक है, सर ये उस काइंडली बच्ची के सर लिए प्लीज सर सर। प्लीज सर सर उस छोड़े बच्ची की सर, बात को होता आप रहता माइंड है ना सर, करें, बच्चे हैं छोड़े सर, हम प्लीज सर। आपके, हम नहीं बहस करेंगे तो कौन करेगा सर, छोड़े। यस बेटा सर। मैं तैयार हूँ अस्सलाम बहस करने वालेकुम के लिए। ठीक है, नहीं कोई नहीं सर। मसले वाली बात उस्ताद तो वालिद नहीं की जगह पे होता है सर, आप है। मेहरबानी यस करें सर, सर। आप हमारे फादर की तरह है सर, आपसे बहस नहीं करेंगे तो किससे करेंगे सर? हमारा मसला आपने तो सुनना है सर, प्लीज सर एडजस्ट कर लें कुछ। बिल्कुल ठीक है, करें सो बिस्मिल्लाह। लेकिन बेटा ये कम नहीं होने है ना, आपने आगे प्रिपरेशन भी तो करनी है ना। सर ठीक हम है, करेंगे आपके सर, पास आप सर प्लीज सर हमने भाई पढ़ना यकीन सारा है रखें, सर, किसी के लिए लेकिन यस मत। सर अभी इट इज बर्डन बहुत है इम्पोर्टेंट। सर। आप लोगों ने जो क्विज में अपनी प्रिपरेशन कर ली है अबाउट द पेरिफेरल नर्व, ठीक है, अब आप लोगों की प्रिपरेशन होनी चाहिए अबाउट द स्पाइन और द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, एल्बो जॉइंट मैंने खुद निकाल दिया है, चलो रिस्ट जॉइंट आप लोग प्रिपेयर करो, इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, 25% का ले रहे हैं आप ओरल एग्जाम, और सर ऊपर से आप 8 लेक्चर दे रहे हैं सर, तो प्लीज हम बेटा मर आप जाएंगे लोगों की सर, आप बहुत प्लीज कुछ प्रिपरेशन कॉम्पनसेट कर इम्पोर्टेंट दीजिए। है। देखिए मेरे लेक्चर्स में टोटल 30 स्लाइड्स हैं। ठीक है, कोई एक ऐसा लेक्चर उठा के दिखाओ जिसमें मेरे पास 45 प्लस कोई स्लाइड हो। ठीक है, जी जी बाकी सर, आप जितने भी बिल्कुल ठीक टीचर्स हैं कह रहे हैं, आपके 45 प्लस बट स्लाइड्स आपकी होती हैं, एक लाइन की आपके 10 30 लाइनों स्लाइड्स की हैं। एक्सप्लेनेशन होती है बट यू सर, हैव आप टू एक लाइन। स्टडी इट फ्रॉम योर बुक। ठीक है, मैं कोई एक दफा भी सर ये नहीं किसी से सुनूंगा कि जी आपके लेक्चर में नहीं लिखा या पीपीटी में नहीं लिखा। इफ आई हैव सर टॉक आप अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है, तो आप लोगों ने बुक से प्रिपेयर करना है। ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू योर बुक। ठीक है, सर आप अपनी सर रिकॉर्डिंग आप जी यूट्यूब पे बेटा। सेव कर सर दिए? आपने यूट्यूब अमल बेटा आप बोलें। सर मैं ये कह रही हूँ कि रिकॉर्डिंग्स या तो यूट्यूब पे अपलोड कर दें, क्योंकि कुछ बेटा कुछ खुलती हैं अ, कुछ नहीं खुलती। एक मसला थोड़ी ना है, बहुत मसले हैं एक्चुअली। यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लेता ही है अपलोडिंग। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह ताला 1 या 2 दिनों में अपलोड हो जाएंगी सारी वीडियोस। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू आई सो हैव मच। डाउनलोडेड ऑल द कंटेंट। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला 1 या 2 दिनों में हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। जी मैं सर। एक बच्ची और भी शायद यही पूछ रही थी, तो बेटा आपको भी यही जवाब है, 1 to 2 डेज में इंशाल्लाह हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द पीपीटीज, फ्रॉम द बुक्स एज वेल। दोनों चीजों को सामने रख के तैयार करें। ठीक है, ओके सर बच्चों, जो थैंक यू। एलएमएस बेस लिखा हुआ है वो क्विज कंसीडर होगा या अभी होना है? नहीं, वो क्विज कंसीडर हो गया हुआ है बेटा, एलएमएस बेस्ड। क्योंकि बाकी टीचर्स कह रहे थे कि क्विज हमने जो ले लिया अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि रूल्स चेंज हुए हैं। नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे लिए होंगे कि उन्होंने मतलब सिनेरियो बेस्ड नहीं लिए होंगे, बट आई हैव टेकन योर सिनेरियो बेस्ड क्विज एग्जाम। ठीक है, ये तो सर आपने हमें सिर्फ 15 मिनट दिए थे, तो उसके लिहाज से तो हमारा अच्छा ही बेटा क्विज एक हो गया। एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट बहुत स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, यस सर, और ओके उसमें बच्चों, चीटिंग भी नहीं होती बिल्कुल भी। जिसने करनी होती है बेटा वो कर लेते। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।